Assalamualaikum everyone. My name is Basim Raza. I'm a research associate at Center for Law and Security. Uh, so today I welcome you all on this webinar titled Gaza Ceasefire Agreement, Will It Last? On January 15th, 2025, the Prime Minister of Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, announced that Israel and Hamas had reached an agreement on Gaza ceasefire and hostage release deal. So the agreement, which came into effect on January 19th, marked a pause in a 15-month-long conflict that claimed nearly 47,000 Palestinian lives and 1,200 Israeli lives. To discuss this critical development, we are joined by two leading experts on the Middle Eastern politics and conflicts. Number one, Dr. Nazish. Dr. Nazish Mahmood is an assistant professor at the School of Politics and IR at Quaid-e-Azam University. And second, Dr. Muhammad Umar Abbasi. He's an associate professor at the National Defense University, Islamabad. Dr. Umar's research focuses on politics and conflicts in the Middle East. Welcome to both of you. And we are also joined by Mr. Rahman Azhar, the Executive Director of Center of Law and Security. Welcome to you, sir. Thank you. So my first question is from Dr. Nazish. Ma'am, as the efforts of the ceasefire in the war in Gaza, they have been persistently going on for a long time. What do you think is the pivotal factor in achieving a ceasefire agreement now in the war of Gaza? Um, I would say it is definitely. सबसे पहले तो I think I want to thank Mr. Azhar for inviting me to this platform. Thank I you, जी, think welcome. this is a very pertinent question because people have been asking कि इससे पहले Biden administration was there and we saw for 15 months there was like ceaseless genocide going on. So ऐसा क्या हुआ कि all of a sudden we can see that this ceasefire agreement came into being. So I would say definitely Trump is the most important factor because when he, and this is not that there is any genuine concern on part of the Trump administration. It is more like a political theatrics because his priorities are very, very different. आपने ट्रम्प का बयान सुना होगा. He said that I'm not very confident that this deal will sustain. So that gave an impression that he is not very much interested. लेकिन I think this is a misrepresentation of his intentions. अगर आप deal के structure पे भी जाएंगे तो you will find that the deal has been organized in a way कि ये sustain करेगी because in the first phase is the release of Palestinian prisoners and Israeli hostages. Second phase के अंदर आपको नजर आता है कि the return of the civilians to the north of Gaza and even Israeli forces जो हैं वो भी further withdraw करेंगी and then in the last stage there is another again आपका Israeli hostages release किए जाएंगे and then the most important question, the $1 million question जो address किया जाएगा in the third phase would be who will govern Gaza post conflict. So the structure has been designed in a way कि अब उसमें कुछ Americans भी हैं जो hostages जो बाद में release होंगे. So the last of the hostages could be Americans. So American President Trump की ego के लिए and I think for his stature, it is very, very important that no American should remain behind. So ये एक बहुत ही interesting तरीके से इसको डिजाइन किया गया है. लेकिन the first phase is the easiest one. Second and third phase are very, very tricky and very, very complicated. This gives definitely a respite, temporary respite to लोगों को मिला है both sides, Israeli side पे भी, Palestinian side पे भी. और आई थिंक नेतन्याहू ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि ट्रम्प की जो बेसिक प्रायोरिटी है वो अमेरिकन इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वॉर सऊदी अरेबिया और इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है. सो उस सारे अरसे के लिए इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनिशियली आप एक 42 डे का सीज फायर लाएं और उसमें फिर ईरानियन क्वेश्चन एंड ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी एड्रेस करें. ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड वंडरफुली कि इसकी जो फेजेस हैं, लेकिन हमें जो समझ आ रहा है वो यही है कि अमेरिका इसके अंदर जो है वो एक गारंटर है.
मैं डॉक्टर उमर साहब, एक तो ये कि ये जो तीनों फेजेस हैं इसमें अब यूएस मेन गारंटर तो अभी यूएस को ही समझा जा रहा है, बट कतर एंड इजिप्ट एज वेल। लेकिन एक तो आपको क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स, आपको सीज फायर के क्या नजर आते हैं? ये चलेगा या कहीं ना कहीं पर इसमें जो है वो चैलेंजेस हैं, मुश्किल हैं? और दूसरा एक जो जनरल क्वेश्चन जो मैं बाद में डॉक्टर साहब से भी पूछता हूँ, पर ये कि मिडिल ईस्ट आपके ख्याल में कितना चेंज हो गया है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, फ्रॉम अब्राहम अकॉर्ड्स टू व्हाट वी आर सीइंग नाउ? जी बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अजहर साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैं स्पीक इन उर्दू एंड इंग्लिश? बायलिंगुअल, व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विद। ओके। मेरा ख्याल है जरा बायलिंगुअल रखें फर्स्ट ताकि जरा कुछ समझ आ जाए। बहुत इंग्लिश हो ठीक जाती है तो कई दफा चीजें लेफ्ट राइट से गुजरना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो अजहर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन किया है कि सीज फायर जो है किस हद तक जो है ये कैरी ऑन करेगा। तो कोई भी जो सीज फायर होता है दैट इज ऑलवेज वेलकम, बिकॉज इट एंड्स एट्रोसिटीज and it also give opportunity to the warring parties to sit together and solve the issues. हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इन दोनों वॉरिंग पार्टीज का है मेरे नुक्ते नजर में, वो इनका मिसट्रस्ट है। अच्छा। ये जो मिसट्रस्ट है, इसकी वजह से अभी भी आप देखिए कि जो ये एक तरफ से तो सीज फायर गजा में हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हम वेस्ट बैंक के अंदर देखते हैं कि जो सेटलर्स हैं इजराइल के ज्यूज, उन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिए पैलेस्टीनियंस पर। और इसी तरह जो कैबिनेट है इजराइल के अंदर, वहां पर भी हारमोनी नहीं है सीज फायर के हवाले से। हालांकि अगर हम देखें दूसरी तरफ साइड हमास को, तो हमास इज एक्सरसाइजिंग जुबिलेशन एंड दे आर क्लेमिंग देयर विक्ट्री and they claim that they have survived themselves for the last 15 months, rightly so, लेकिन उनका भी ट्रस्ट दूसरी पार्टी पर नहीं है। तो ओवरऑल फर्स्ट फेज तो जो 6 वीक्स का है वो तो एक टेम्पररी सीज फायर है। और प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये होल्ड ऑन नहीं रह सकता, इतना लॉन्गर नहीं रह सकता। सबसे बड़ा टेस्ट जो होगा वो उसकी सेकंड और थर्ड फेज में होगा। अच्छा। क्योंकि जो सेकंड फेज है उसके अंदर ये कंप्लीट विड्रॉल है इजरायली फोर्सेस का, एंड दैट वुड बी अ टेस्टिंग पॉइंट कि क्या वो विड्रॉ करते हैं या नहीं करते। फिर पहले फेज में तो उन्होंने कुछ प्रिजनर्स जो हैं वो वहां से आएंगे, हॉस्टेजेस को उन्होंने रिलीव करना है, लेकिन सेकंड में ऑलमोस्ट कंप्लीट उन्होंने करना है। और उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो ये है कि जो डेड हैं, when the Israelis would receive the dead hostages, so again it would be very difficult for the Israeli government how to convince their public. That would be very emotional at that particular time. और फिर जो थर्ड फेज है जिसमें टोटली इन्होंने गजा को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज आल्सो अ वेरी वेरी ह्यूज, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज गजा हैज बीन टर्न इनटू रबल्स। देयर आर नो स्कूल्स, नो हॉस्पिटल्स, नो कमर्शियल मार्केट्स। अच्छा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें लगता यही है कि ये इतना प्रोलॉन्ग चलेगा नहीं। एंड इफ वी ट्रेस द हिस्ट्री आल्सो, तो ये जितने भी सीज हुए हैं ये फॉर द टाइम बीइंग हुए हैं, जब तक कि परमानेंट रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया जाएगा। अच्छा। जो मेरी आपको ये लग रहा है ये टेम्पररी है, ये एक माय अंडरस्टैंडिंग इट विल बी टेम्पररी। क्योंकि देखिए ना, अब इजराइल की जो गवर्नमेंट है इट इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। अभी डोमेस्टिकली भी उन पर ये क्वेश्चन, इफ द डस्ट इज सेटल्ड, अगर वो सेटल हो जाती है तो फिर तो उन पर क्वेश्चन होगा। उनके आर्मी चीफ ने अभी रिजाइन कर दिया है ये प्ली देकर के आई वाज नॉट कैपेबल इनफ ऑफ डिफेंडिंग द पीपल। और इंटरनेशनली नेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसके खिलाफ केसेस जो है वो चले गए हैं। तो जब भी डस्ट सेटल होगी तो उसमें फिर ये क्वेश्चंस उठेंगे उनकी लेजिटिमेसी के। तो मेरा ख्याल में नेतन्याहू की गवर्नमेंट अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगी कि ये किसी ना किसी हद तक, जब तक कि मुस्तकिल मसला हल नहीं होता, इसको आगे चलने दे। और मुस्तकिल मसला उनकी तरफ क्या है, टू एलिमिनेट हमास मिलिटेंट्स। अरब कंट्रीज, आपको क्या लगता है ये पूरा जो रीजन है, वेरी ब्रीफली अगर आप बता सकें, ये कितना चेंज हो गया है आपके ख्याल में? क्या इस पर जो है वो फर्क पड़ा है इस कॉन्फ्लिक्ट का? Gaza war, to my understanding, has rekindled the Palestinian issue. सबसे बड़ी जो चेंज हमें नजर आती है, क्योंकि अगर आप 7 अक्टूबर 2023 तक देखें
तो उस वक्त हाँ। इजराइल had become an established reality. It was reconciliatory. It was going to reconciliate with the Arab countries, and Saudi Arabia was also about to do that. तो वो बहुत हाँ। हद तक पैलेस्टाइन को जो इशू था, that was put on the back burner. अच्छा, लेकिन आपको जब लगता है अब अरब कंट्रीज वुड बी कॉशियस इन अप्रोचिंग इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स इजराइल, या ये कुछ हिस्से के लिए आपको जो है वो ये जो नजर आएगी, जो पहले आए हम देख रहे थे कि यूएई की तरफ से जो है वो कर लिया गया, ओमान ने जो है वो कर लिया उसको एक्सेप्ट। यूएई बहरैन ने जरूर किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस वक्त जो तनाजर था मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी लैंडस्केप का वो डिफरेंट था। अच्छा, अभी जो है अभी इतनी ज्यादा ये द सिवियरिटी ऑफ वॉर हैज बीन सो इंटेंस कि जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है और जो अरब पब्लिक ओपिनियन है दैट हैज गॉन अगेंस्ट द इजराइलीज एक्ट्स। तो अब ये बड़ा मुश्किल होगा उनका, जिस तरह के अभी सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पिछले दिनों यही बयान दिया है कि विदाउट अ टू स्टेट सॉल्यूशन देयर कैन बी नो नेगोशिएशंस विद द स्टेट ऑफ इजराइल इन टर्म्स ऑफ रिकंसिलिएशन। अच्छा, ठीक, राइट। मैं आई विल हैंड इट ओवर टू बासिम, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से जरा वो टेक उनकी पूछ लूं कि डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक, ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है जितना अरसा, इससे मिडिल ईस्ट में क्या चेंजेस जो है वो लेकर आया है? देखिए जी, मिडिल ईस्ट तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, स्पेशली आफ्टर नवंबर 2023 सीज फायर। अगर आप देखें तो पूरा का पूरा नक्शा ही बदल गया। पॉलिटिकल असैसिनेशंस हुए बाद हसन नसरुल्लाह एंड याया सिन्वर की, उससे आप देख रहे हैं कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो काफ़ी वीक हो गया। Though at the same time we can also say that the resolve of these जो organizations हैं to fight Israel, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा strengthen हुई है, वो उनकी assassination से कम नहीं हुई। बट एट द सेम टाइम रीजनल इफेक्ट, हम जो सबसे एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो सीरियन बशार अल असद का जाना। लाइक नाउ दैट हैज क्रिएटेड न्यू अनसर्टेनिटीज इन द रीजन, and especially it has new players हैं, अब वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। और ईरान के लिए दिस इज अ जो आपका मोस्ट सेफेस्ट रूट था शिपमेंट to Hezbollah, but it's not on Iran and the resistance axis, और हम उनको एनालाइज करते हैं। लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड कि और जॉर्डन ये चीजें ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि अगर ये दूसरा सीज़फायर। डॉक्टर साहब जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, ये लेट मी जस्ट चेक ये, ऑलराइट जी। एंड और जॉर्डेनियन फॉरेन मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली बयान दिया है कि अगर आपने कोशिश की टू पुश मोर पैलेस्टीनियंस इनटू जॉर्डन तो हम दिस वुड बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, लाइक दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। एंड यूएई की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है अब जैसे बात, एंड दे वर लाइक जो एक एक्सटर्नल अथॉरिटी जो बाद में गजा को गवर्न कर सकती है, उसमें यूएई का नाम भी आ रहा है, उसमें मोरक्को का नाम भी आ रहा है, उसमें इजिप्ट का नाम भी आ रहा है कि शायद वो अपनी फोर्सेस भेजें अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इज नॉट इन अ पोजीशन। इवन यूएई हैज स्टेटेड कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आप हमें एक वायबल टू स्टेट सोल्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए अपनी पॉपुलेशंस को ये सेल करना कि आप सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए वहां जा रहे हैं एंड कोई एक क्रेडिबल टू स्टेट सोल्यूशन प्लान नहीं। आपको लगता है ये जो अरब ओपिनियन है स्पेशली इन मोनार्कीज के अंदर, ये इनकी डिसीजन मेकिंग को जो है वो किसी तरह से जो है वो इम्पैक्ट कर रही है? बिकॉज पैलेस्टाइन के हवाले से तो मेरा ख्याल है आई थिंक द अरब वर्ल्ड जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो बहुत ही यूनाइटेड है। जी देखिए, जो डेफिनेटली दे आर मॉनिटरिंग द पल्स ऑफ द पब्लिक, क्योंकि अगर एक मैं तो ये सोच रही थी एक मोहम्मद बौजीजी के आग लगाने से अगर अरब स्प्रिंग आ सकता तो पूरे पैलेस्टाइन के जर्नल से तो अरब वर्ल्ड का क्या कुछ हो सकता है, वी कैन नॉट इवन पॉसिबली इमेजिन।
So I think they also realize कि जो उनकी public है and the masses, क्योंकि अभी जो recent surveys में देख रही थी, they are like 92% of the Arab world is with Palestine, and जो उससे भी अच्छा amazing है, 70% of the population of the Arab world supports Hamas, जो कि अच्छा बहुत ही significant factor है. So they अच्छा understand कि हमने अभी तक और I think this public opinion has been the prime reason जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि lip हम्म service ही maybe Jordan, Saudi Arabia, Egypt, they have been stressing that two-state solution is the ठीक only solution. राइट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बासिम ओवर टू यू मेरा ख्याल है बासिम ने सवाल पूछना था he got disconnected but he's back now जी Sir, I think we don't have that much time, so I'm going to be very brief. So, my question to you, Dr. Umar, is that end goal, sir, हमने देखा इसराइल ने जो डिक्टेट किया था, that was कि हमने हमास को eliminate करना है entirely, and we are going to create a situation कि जहां पर हमास इन पावर ना हो. आज भी हम देखते हैं कि रिसेंट जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली भी हमास के जो नंबर ऑफ फाइटर्स है वो अभी भी उतने ही हैं. सो हाउ डू यू सी दिस कि इसराइल का एंड गोल तो कहीं अचीव नहीं हो रहा. सो आर दे गोइंग टू गो फॉर अनदर ऑफेंस? जी Basim, you are absolutely right कि although thousands of the Hamas militants have been killed by the Israeli forces, still they have so many, and so many recruitment has also taken place during this period of time. और दूसरा अभी आपने जो हम देख रहे हैं कि ये जब हॉस्टेजेस को इन्होंने रेड क्रॉस के हवाले किया है तो उसमें भी आप देख लें कि वो बड़े एक्टिव नजर आए हैं और बहुत ही यानी वाइबल उनकी पोजीशन हमें नजर आती है. और दूसरा जब से ये सीज फायर हुआ है उसके बाद who is virtually governing all these affairs inside the Gaza? They are still the Hamas. Definitely वो 2007 से वहां पर रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं उस एरिया को. तो 18 साल के बाद आप अगर कोई ये समझे कि उनको टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है तो दिस इज नॉट द फैक्ट. अभी ये जो टाइम है सीज फायर में इसका सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा होगा तो हमास को होगा. दे वुड गेट टाइम टू रीग्रुप देमसेल्फ, रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ. और फिर दूसरा हो सकता है कि वो टोटली दोबारा से गवर्नेंस ना ले, क्योंकि इस वक्त जो भी गवर्नेंस लेगा उसके लिए बहुत हाई स्टेक्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न गजा एट दैट पर्टिकुलर. 90% ऑफ गजा हैज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड. यानी उसमें आप देखें कि कोई कमर्शियल मार्केट्स नहीं है, कोई स्कूल्स नहीं है, कोई द पीपल डोंट हैव एनी जॉब्स, पीपल डोंट हैव एनी स्कूल्स. किसी तरह भी वो तो अब जो भी गवर्निंग अथॉरिटी होगी वो उसको कैसे मैनेज करेगी, वो विदाउट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नहीं कर सकती. लेकिन मेरा जो नुक्ता नजर है, हमास वुड बी लुकिंग टुवर्ड्स अ पोजीशन जस्ट लाइक हिजबुल्लाह हैव इन लेबनान कि भाई गवर्नेंस तो आपकी नहीं है लेकिन आप फिर भी पॉलिटिकली स्टेक होल्डर हैं और कोई भी जो डिसीजन मेकिंग है, कोई भी जो सोल्यूशन है वो विदाउट हमास ना हो. वो अब इस स्ट्रेटेजी की तरफ मुझे जाते हुए नजर आते हैं. रही बात ये कि इजराइल का जो आपने क्वेश्चन किया कि ठीक है उनका ये एम था कि इनको टोटली एलिमिनेट किया जाए, जो मुमकिन नहीं है. आप जिनको खुद क्रिएट करते हैं आप उनको टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते. एंड वन डे दे टेक गन्स अगेंस्ट यू. दिस इज द हिस्ट्री. ये हमारे साथ भी हुआ, ये रशियंस के अमेरिकन के साथ भी हुआ और ये वहां पर भी हो रहा है. तो ये तो मुमकिन नहीं है. हाँ, उनको कैसे अब इस पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाया जाए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. क्योंकि उनके अंदर भी डिवीजन है. एक तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो कि काफी हद तक डिफरेंट अप्रोच है उनकी पैलेस्टीनियन इशू पर, हमास की डिफरेंट है. और इस वक्त हमास ठीक है क्वांटिटेटिवली तो वो डिस्ट्रक्ट की कर दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय हुए भी हैं, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन अगर ओवरऑल उनके नजरिए की बात की जाए तो उनका जो नजरिया था कि पैलेस्टीनियन इशू को दोबारा जिंदा किया जाए, दे हैव बीन सक्सेसफुल. सो दिस हैज गिवन देम बूस्ट. वो तो उनको बूस्ट मिलेगा. और फिर डॉक्टर नाजिश ने बात की कि ओवरऑल हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इसकी होलिस्टिक पिक्चर देखनी पड़ेगी. सीरिया के अंदर भी नॉन स्टेट एक्टर के साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं, यहाँ भी नॉन स्टेट एक्टर जो है वो सीज फायर के साथ उसकी पोजीशन. तो ये जो मिडिल ईस्ट में नॉन स्टेट एक्टर फिनोमेना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है. इस पर दुनिया को देखना पड़ेगा कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं. ठीक सर. डॉक्टर नाजिश, वेरी ब्रीफली मैम, आई वांटेड टू आस्क यू मैम कि अब टू स्टेट सॉल्यूशन को आप कहाँ देखती हैं आज?
कि रिपीटेडली डिस्कोर्सेज में हमें ये बात नजर आती है, इवन ऑन द इंटरनेशनल मीडिया, even among the like the governing authorities of the western states, हमें टू स्टेट सोल्यूशन की बाज़गश्त सुनाई जरूर देती है। लेकिन आप क्या समझती हैं, इज इट पॉसिबल कि वो दोबारा उसके ऊपर कोई अमल पैरा किया जा सके, कुछ अमल हो सके? और डॉक्टर नहीं, साहब मैं I don't. एक और सवाल जरा मेरा भी इसमें एक्सटेंस से कंक्लूडिंग आपका है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज आप क्या देख रही हैं विद फॉर द पैलेस्टीनियंस एंड आल्सो फॉर द अरब वर्ल्ड इस सीज फायर के अंदर इन फ्यूचर? पहले तो सवाल डॉक्टर साहब आपका कुछ इंटरनेट का जो है वो इशू है। आई थिंक सर शी इज डिस्कनेक्टेड। हाँ, मुझे भी लग रहा है। बट बासिम, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन conclude. Sir, so we are almost all out of time. So I'm very much thankful to you, Dr. Umar Abbasi, for being with us here. And I'm so much thankful to Dr. Nazish. I hope my voice is, being listened over there. Thank you so very much, Sir Rahman, for being with us. थैंक यू जी, And थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ हैं, थैंक यू। thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you from my side also. Thank you very much.